Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद् His Divine Grace Abhacharanarinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki, ISKCON Founder Acharya, Deity Founder Acharya, Savior of the whole world Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Stottra Shatashri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunagiri Govardhan ki. Ganga Maya Yamuna Maya ki, Vrindavan Mathura Dham ki, Purushottam Kshetra Jagannath Dham ki, Mayapur Navadvip Dham ki, Pandharpur Dham ki, Bhakti Devi Tulsi Devi ki, Kali Kali Patita Pavana Shri Hari Ram Sankirtan ki. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Translation. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross over the ocean of material suffering and obtain Krishna's mercy. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. Srila Prabhupada ki Jai.
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 10 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसकी विवेचना की शुरुआत करेंगे। शामपट पे भी श्लोक है। यदा शिक्षु पुरात्मना परो रजा सृजदेशा पृथक
स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा सशिष्यमाणा तम इयरति आसो यदा शुशुक्षु पुरात्मना परो रजाश देशा पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा शैष्यमाणा तमैर्यति आसो यदा शिक्षु पुरात्मना परो रजाश्रितेषा पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा सैष्यमाणा तमैर्यति आसो। प्रभु जी सत्तं विचित्रासुरीश्वरा सैष्यमाणास्तमिरेत्यासो यदा शिक्षु पुरात्मना परो रजाशु दत्तेश पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा सशिष्यमाणास्तमिर्यति आसो यदा शुशिक्ष पुरात्मना परो रजाशु जत्तेश पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा समीष्यमाणास्तमित्यासो। माता जी इसमें कोई पढ़ेगा? यदा शिक्षु पुरात्मना परो रजाशु जतेश पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रासुरीश्वरा सैष्यमाणास्तमिरित्यासो। तो अब शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ हम दोहरा सकते हैं। यदा, जब श्री शिक्षु सृष्टि करने को इच्छुक, पुरः भौतिक शरीर, आत्मनः जीवों के लिए, परः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, रजोगुण सृजति प्रकट करता है, एष वह पृथक अलग मुख्यालय स्वमायया अपनी सृजन शक्ति के द्वारा, सत्वम सतोगुण, विचित्रासु विभिन्न प्रकार के शरीरों में, रीन रसु कर्म करने का इच्छुक, ईश्वर शैष्यमाणः समाप्त करने के निकट, तमः तमोगुण ईर्यति प्रकट करता है, असौ वह परमेश्वर। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं,
तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वह प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सतोगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। तात्पर्य, यद्यपि भौतिक प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित होती है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि भगवान भगवद गीता 9.10 में कहते हैं, मया दक्षिणे प्रकृति स्वीते से चराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगत परिवर्तिते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियमानुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से भी ऊपर उनके अध्यक्ष परमेश्वर हैं। प्रकृति यंत्र आरूढ़ानी माया द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सत्वगुण प्रधान होता है अथवा रजोगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश अनुसार होती है। इसलिए यहां पर कहा गया है, यदा चक्षुषु पुरा आत्मनः परः, जो सूचित करता है कि यह शरीर निश्चित रूप से भगवान द्वारा सृजित है। कर्मण दैव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सतोगुणी है या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, यह सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक स्वमाया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार भगवान ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं। इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुदेवतां। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं इस्कॉन कैंप के प्रबंधन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा जो वचन कहे गए हैं उन वचनों को यथारूप में प्रस्तुत कर पाऊँ। अगर कोई त्रुटि होती, यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए बोल पाऊँ, और ये भी अनुरोध रहेगा कि कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको भी सुधारें। तो ये जो जिस श्लोक पे हम हैं, ये अब यहाँ पर इस अध्याय में ये 7वें स्कंद का पहला श्लोक है। तो आज हम 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक की विवेचना करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम का जो 7वां और 8वां स्कंद है वो भगवान की भुजाएं हैं, और श्रीमद् भागवतम के जो 10 मूलभूत विषय वस्तु हैं, जो मूलभूत संदेश हैं, उसमें उति ये संदेश जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दिया गया है। उति को श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं कई जगह इंक्लिनेशन, यानी झुकाव। तो ये झुकाव ही निर्भर, ये इस पे हम किस तरफ झुके हुए हैं इस पे निर्भर करता है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। तो झुकाव भी 2 तरह से होता है, एक होता है पुण्य झुकाव, एक होता है पापमय झुकाव, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। और जिस तरह हमारा झुकाव होगा उस प्रकार से हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होगा, और उसी प्रकार से हम अलग अलग कर्म करेंगे।
और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें शरीर प्राप्त होगा। तो इस स्कंद में कुल 15 अध्याय हैं। तो पहले 10 अध्याय जो है वो शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं और उसके बाद के अध्याय जो है कर्म मिश्रित भक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक जो है, इस श्लोक पे आने से पहले हम इस श्लोक पे हम कैसे पहुंचे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है परीक्षित महाराज के प्रश्नों के द्वारा। तो जैसा हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है। एक ऐसा वक्ता जो निरंतर बोले जा रहा है और दूसरा वक्ता जो निरंतर सुन रहा है। शास्त्रों से हमें पता चलता है कि ये जो संवाद जो हुआ था वो निरंतर संवाद हुआ था 7 दिन 7 रात तक, बिना किसी ब्रेक लिए, बिना किसी रुकावट के। और चूंकि परीक्षित महाराज इतने सुंदर वक्ता थे, इतने सुंदर श्रोता थे कि वक्ता को भी आनंद आ रहा था उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो यहां पर इस अध्याय की शुरुआत होती, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान कहते हैं कि वो सबको सम रहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु। भगवान जो इस सृष्टि के जगत पालक हैं वो उन्हें सबको सम होना चाहिए, लेकिन भगवान के जो कार्यकलाप है वो ऐसे दिखते हैं कि जैसे भगवान किसी तरह का भेदभाव करते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, किसी के विपक्ष में रहते हैं। तो ये संशय जो है आचार्य ने बताते हैं कि परीक्षित महाराज को स्वयं, परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, उन्हें सब कुछ ज्ञान था, लेकिन हम जैसे लोगों को, क्योंकि पहले जैसे मैं भी जब सुनता था भक्तों के संग में नहीं आया था, इस्कॉन में नहीं आया था, इस्कॉन के भक्तों से नहीं जुड़ा हुआ था, तो मुझे हर जगह ये लगता था कि भगवान जो है कपट करते रहते हैं, असुरों के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। और उसी प्रश्न का निराकरण करने के लिए परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं कि भगवान जो है वो समदृष्टि नहीं रखते, देवताओं के प्रति कुछ करते हैं और असुरों का संहार करते रहते हैं, तो एक कैसा उनका सम होना है। और फिर उनको कहते हैं कि मुझे साक्ष्य के साथ आप बताइए कि भगवान ऐसे नहीं है, मुझे गलत प्रूफ करिए। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न का, और फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, व्यासदेव जी को प्रणाम करके फिर उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान यद्यपि इस तीनों गुणों की सृष्टि करते हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं जो कि तीनों गुणों से युक्त है, लेकिन भगवान जो है सदैव तीनों गुणों के परे रहते हैं। और इसके पिछले वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति के चाल चलन से, व्यक्ति के व्यवहार से पता चल सकता है कि वो सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार से शरीर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में कुछ एक शब्द है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और उसे से संबंधित बाकी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो श्लोक का शब्द है यत सृक्षया, यानी सृष्टि करने की इच्छा। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सृष्टि करने की इच्छा, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अनंत कोटि जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये भगवान की इच्छा से प्रकट होता है, भगवान की इच्छा से। तो ये सृष्टि जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कई इतर ग्रंथों में भी लिखा है लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि हो और सृष्टि हो गई। तो ये जो जीव की उत्पत्ति, ये सारे विषय वस्तु या शरीर का बदलना, इन सारे विषय वस्तुओं को समझने से पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझना है। और ये जो श्लोक है उसी से संबंधित है। तो प्रायः जैसे हम सामान्य तौर तरीके से देखें तो ये जगत जो है बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, सारी चीजें स्वयं रूप से घटित हो रही हैं। सूर्य जो है वो उचित समय पे आ रहा है, चंद्रमा जो है उचित समय पे आ रही है, वर्षा हो रही है, अग्नि जो है ताप दे रहा है, बहुत सारी चीजें स्वयं रूप से घटित हो रही है। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति से कहा जाए या एक ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति से कहा जाए तो वो ये कहेगा कि ये सारी चीजें जो हैं ये संयोग मात्र है, ये सिर्फ संयोग के कारण हो रही है। लेकिन अगर हम वैदिक वांग्मय या वैदिक शास्त्रों के पास जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सारी चीजें जो हैं यो संयोग नहीं है। ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो पूरा जगत जो चलायमान है, इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है जो इन सारी चीजों को चला करके रख रहा है। अगर आप देखें तो कई ऐसे भी पौधे मिल जाते हैं जिसमें एक ही पौधे में 2 विभिन्न विभिन्न रंगों के पुष्प आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये संभवतः संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई बुद्धिमान व्यक्तित्व है।
तो जो थोड़े बहुत आस्तिक होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान, मानते हैं कि ये सृष्टि जो है भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान इसको चला रहे हैं, कोई इंटेलिजेंट या बुद्धिमान व्यक्तित्व है उसका। तो उनकी ऐसी परिकल्पना होती है, वो ऐसा सोचते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही व्यस्त होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कार्य हैं, तो बहुत ही व्यस्तता में वो कार्य कर रहा होता है और उसके पास कोई समय नहीं होता कि और चीजों के बारे में ध्यान दे, वो सिर्फ सृजन ही करता रहता है। और प्रभुपाद जी हमें बताते, उदाहरण देते हुए, कि वो लोग कल्पना करते हैं कि एक भगवान जो एक बूढ़े व्यक्तित्व हैं, उनकी दाढ़ी आ गई है, दाढ़ी सफेद हो गई है, झुक गए हैं, और वो अपने ऊपर एक एटलस, अगर आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वो अपने ऊपर एटलस धारण कर रखा है, उसने अपने पूरे जगत के बोझ को उठा रखा है और बहुत ही दुखी अवस्था में है। लेकिन शास्त्र में बताते हैं, भागवतम और बाकी इतर शास्त्र में बताते हैं कि भगवान जो है वो सृष्टि इस तरह से दबाव में नहीं करते। भगवान जो है सृष्टि करते हैं स्वतंत्र रूप से, आनंदमय तरीके से। इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण भी होता है तो भी उन्हें कोई भी शिकन नहीं आती है, कोई पसीना नहीं आता है, कोई चिंता नहीं होती। तो भगवान ने ये सृष्टि की और बिना किसी चिंतन के, तो ये कैसे संभव है? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई एक धनी व्यक्ति हो, तो धनी व्यक्ति को अगर किसी घर का निर्माण करना हो, या उसके लिए अपने गृह का निर्माण करना है, या कार्यालय का निर्माण करना हो, तो कार्यालय का निर्माण करने के लिए वो क्या करता है? सिर्फ स्थान को चिन्हित करता है, स्थान को चिन्हित करता है, और उसके बाद उसके जो भी शक्तियां हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा जो उस घर का निर्माण करेगा, आर्किटेक्ट आ जाएगा जो उस घर की दशा को बताएगा, फिर एक अभियंता आ जाएगा जो सारे कार्यों को क्रियान्वित करेगा, फिर इस तरह से सारी चीजें जो है उसकी इच्छा करने के मात्र से, उसकी इच्छा करने से ये सारे घटक जो है साथ में आकर के क्या करेंगे? उस घर का निर्माण कर देंगे। तो एक सामान्य उद्यमी के लिए, धनवान व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वो अपने धन की अपनी इच्छा करने से मात्र से सारे ये घटक जो है अपने आप आ जाते हैं और उसका घर निर्माण हो जाता है। तो उसी तरह से भगवान को भी कोई कार्य नहीं करना पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी इच्छा करने के मात्र से ही इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं भगवान? यहां पर तो हम देख रहे हैं व्यापारी जो है विभिन्न घटकों को ले रहा है और फिर उनके निर्देशों पर कार्य हो और घर का निर्माण हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र में बताता है कि सृष्टि का निर्माण फिर क्या होता है? भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं, और उन विस्तारों में भगवान के जो विस्तार होते हैं वो उन्हीं की तरह शक्तिवान होते हैं, उन्हीं की तरह ऐश्वर्यवान होते हैं, उन्हीं की तरह प्रभावशाली होते हैं। और इन विस्तारों के द्वारा इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति इतने सारे लोगों में अपना विस्तार करे। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं किसका? कैंडल का या दिया का। तो एक दिया होता है जो बाकी सभी दीवों को प्रज्वलित करता है, लेकिन वो जो मुख्य दिया रहता है वो भी प्रकाश देता है, वो उसकी एक पृथक पहचान है, और बाकी जो दिए हैं उसकी भी पृथक पहचान है। तो इस तरह से एक व्यक्ति विभिन्न विस्तार करता है। तो ये विभिन्न विस्तार, तो ये उदाहरण देते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का ये उदाहरण जो है वो सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है। जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो ये ब्रह्मा जी का इस तरह से उदाहरण देना ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने अनुभवों के द्वारा ये बताया है कि कैसे भगवान के विस्तार जो हैं प्रभावशाली हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसमें आता है वर्णन ब्रह्म विहोन लीला का। तो कथा ऐसी है कि एक बार जब भगवान कृष्ण ने बाल्य रूप में अघासुर का वध किया, तो उस वध को ब्रह्मा जी ने देखा, और शास्त्र में बताते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े अचंभित हुए कि ये छोटा सा बालक इतने अति मानवीय कार्य कैसे कर रहा है। और उस अचंभे के कारण ब्रह्मा जी जो है वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस बालक की परीक्षा ले लूं, ये देखूं कि ये वास्तविकता में भगवान है कि नहीं। अचंभे का सिर्फ एक ही कारण नहीं था, उसके अगला कारण आचार्य ने बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा अघासुर का वध करने के बाद भगवान आते हैं, और भागवतम में बताता है कि किस तरह से वो अपने बालों के संग में प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं,
और एक आचार्य बताते हैं कि भोजन इस तरह से ग्रहण करते हैं कि उस दिन जो है उनका एक मित्र वो छाछ लेकर के आया रहता है और भगवान उससे कहते हैं कि छाछ दे दे मुझे, लेकिन वो बालक जो है छाछ देता नहीं है, छाछ पीने लगता है। तो कृष्ण को छाछ लेने की इतनी उत्कंठा रहती है कि वो छोटे बालक है तो छाछ पीना है तो छाछ लेकर के मुंह ऐसे अपना गोल कर लेता हूं। तो भगवान क्या करते हैं, उस बालक के दोनों गाल पे से मारते हैं पच, और फिर छाछ जो है मुंह से निकल जाती है और भगवान जो है उस छाछ को ऐसा मुंह बा करके उसको ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो है पूरा जो दिमाग है वो हिल जाता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, शास्त्रों में वर्णन है कि यज्ञ, सारे यज्ञ के मूलभूत भोक्ता कौन है, भगवान यज्ञेश्वर कृष्ण है। और जब ऋषि मुनि गण बहुत ही शुद्धता के साथ वैदिक वांग्मय का बहुत ही सुंदर प्रयोग करने के बाद, आहुतियां देने के बाद भी भगवान जो है वो यज्ञ का भार ग्रहण करने नहीं आते, और यहां पर एक जो ग्वाला है वो ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण बालक भी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जो है वो ब्राह्मणों और वैष्णव के मुख से खाते हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान उस उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं। और यहां पर ये बालक ब्राह्मण भी नहीं, ग्वाल बाल है, और इसके मुख से, मतलब चलो जूठा लिया है तो ठीक है, मुख से निकला हुआ जो खा रहे हैं तो ये भगवान नहीं है। और फिर वो भगवान की शक्ति को जांचने के लिए क्या करते हैं, जितने भी जो ग्वाल बाल रहते हैं और गाय रहती हैं और बछड़े इत्यादि, उनका वो अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करके उन्हें वो अपने लोक में ले जाते हैं। भगवान जाते हैं, कुछ दूर चली गई रीति जाकर के ढूंढते हैं तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये कार्य किसने किया है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी ले गए और भगवान अपना विस्तार करते हैं। और इस तरह से विस्तार करते श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि भगवान एग्जैक्टली मतलब जिस तरह से वो ग्वाल बाल थे, जैसे भी ग्वाल बाल थे, उनके जो भी रूप रंग था, उनके जो भी वस्त्र थे, उनकी जो भी चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, उनका बोलचाल का तरीका, उनके सारे तरीकों को यथारूप जो है वो अपने विस्तार से प्रकट करते हैं और बछड़ों को भी प्रकट करते हैं। यानी कि भगवान ऐसा विस्तार करते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चले कि ये वो व्यक्ति नहीं है। तो सामान्य लोग पूछ सकते हैं कि भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं विस्तार होता है, जैसे आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है, तो जब ये सजीव प्रसारण होता है तो एक ही व्यक्ति हमें बहुत सारे टीवी स्क्रीन पर दिखता है, बहुत सारे मोबाइल पे एक ही व्यक्ति दिखता है और अलग अलग एक ही व्यक्ति अलग अलग टीवी स्क्रीन पे दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का विस्तार है, लेकिन इस विस्तार में वो व्यापकता नहीं है। ये विस्तार जो है सिर्फ चित्र का विस्तार है, एक ही व्यक्ति हर जगह एक ही कार्य कर रहा है। लेकिन भगवान का विस्तार जो है वो अलग अलग कार्य करने में सक्षम है। तो इस तरह से भगवान का विस्तार जो है, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि अपने शक्तियों से अपने ही तरह से अलग अलग लोगों का, अलग अलग जीवों का, अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों का निर्माण कर सकते। और फिर उसके बाद फिर ब्रह्मा जी जब आकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो ग्वाल बाल उन्होंने अपहरण कर लिया है वो वहां पर भी दिख रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी को अकल आती है और फिर वो जाकर के क्षमा याचना करते हैं। तो इस तरह से भगवान का विस्तार जो है अनंत है और वो सारे उतने ही प्रभावशाली हैं। तो सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि जैसे अगर आपके पास, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर पास बैंक बैलेंस है और बैंक में पैसा रखा है और आप क्या करें, रोज जाकर के पैसे को निकाल लें, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बैंक का जो जमा बही खाता है वो शून्य हो जाएगा। तो क्या इसी तरह से अगर भगवान अपना इतना शक्तिशाली विस्तार करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इसी तरह से वो भी शून्य हो जाते हैं या उनका भी क्षय हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। भगवान अपनी ही तरह अनंत कोटि विस्तार करते हैं और भगवान यथारूप में रहते हैं। तो जैसे सृष्टि की जब संरचना होती है तो कृष्ण जो है वो महाविष्णु को प्रकट करते हैं, और कृष्ण भी रहते हैं और महाविष्णु भी इतने शक्तिशाली हैं जितने कृष्ण हैं। तो महाविष्णु क्या करते हैं, तो महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें जीव तत्व और भौतिक तत्व हैं उनका निर्माण होता है। तो महाविष्णु के शरीर से जब इतने सारे भौतिक तत्वों का, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो कई बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोगों को भ्रम होता है, ऐसे कैसे संभव है? तो ऐसा संभव है, शास्त्रों में ये लिखा गया है और शास्त्रों में सृष्टि की संरचना के बारे में इसी तरह से बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ, यानी
हम पहले जलचर थे, फिर जल से हम लैंड पे आए, इस तरह से हमारा मनुष्य के पद को प्राप्त किया। लेकिन शास्त्र इस बात की अनुशंसा नहीं करते। तो भगवान क्या करते हैं, महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर इस श्लोक में एक शब्द आया है पृथक स्वमाया। तो ये पृथक स्वमाया, तो स्वमाया और पृथक स्वमाया ये समझने की आवश्यकता है। तो ये पृथक स्वमाया का अर्थ क्या है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, और स्वमाया का अर्थ है कि भगवान की स्वयं की अंतरंगा शक्ति। तो ये शब्द जो है स्वमाया, आत्ममाया, ये बार बार जो है भागवतम में आता रहता है। जब जब भी भगवान के प्राकट्य के बारे में चर्चा होती है तब तब ये शब्द स्वमाया आत्ममाया आता है। तो हम सारे लोग जो भी शरीर धारण करते हैं, हम सारे लोग शरीर धारण करते हैं अपने कर्मफलों के अनुसार, अपने अलग अलग कार्यों के अनुसार। लेकिन भगवान जो है वो कभी भी अपने कर्मफलों के अनुसार नहीं शरीर धारण करते, अपनी इच्छा के कारण जो है वो शरीर धारण करते हैं, अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं। और इस श्लोक की शुरुआत में एक शब्द है आत्मनः। तो आत्मनः यह शब्द श्रील प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं, आत्मनः शब्द का कहते हैं कि जीवात्मा, जीवों के लिए उपयोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं जीवों के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, इसके पहले वाले श्लोक में आत्मनः शब्द का अनुवाद करते हैं परमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए। तो एक ही शब्द जो है वो अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान जो है वो अपनी इच्छा से, तो भगवान की सृष्टि, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता। भगवान स्वतंत्र ईश्वर है, कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, स्वतंत्र इच्छा से वो सृष्टि करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि करने की, महाविष्णु को सृष्टि करने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो श्रील प्रभुपाद जी आचार्य में बताते हैं कि जो जीव है, तो जब ये सृष्टि होती है, जब महाविष्णु जब अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, तो महाविष्णु अपना एक विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल उपजता है और उस कमल पर जो है ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो एक सामान्य, जैसा कि आप सभी को पता है, और ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि कमल से उत्पत्त व्यक्ति, अजमनाभ जन्म ऐसा कहा जाता है। तो चूंकि अजमनाभ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अजमनाभ जन्म का अर्थ क्या होता है कि वो व्यक्ति जो कमल से उत्पन्न हुआ हो। तो ये कमल जो है वो भौतिक तत्व है, और भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो भौतिक ही रहेगा। और जब कोई चीज भौतिक चीजों के संसर्ग से उत्पन्न होगी तो उसमें 4 प्रकार के दोष तो सदैव ही रहेंगे। क्या 4 प्रकार के दोष है? भ्रमित होना, छल करना, गलतियां करना और अपूर्ण इंद्रिया। तो ये भौतिक तत्व के सम्मिश्रण से जब जीव उत्पन्न होगा, तो इसीलिए हम सारे जीव जो है इन चार जो कमियां हैं उससे हम भरे पूरे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भागवत में बताता है कि ब्रह्मा जी जो है इस 14 भुवन का निर्माण करते हैं, और उस 14 भुवन में अलग अलग योनियों का, जीवों का निर्माण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ये निर्माण जो करते हैं वो किसकी शक्ति है? वो भी भगवान की शक्ति है। जैसे भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं ना, भूमि रपो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृतिस्तदा। तो ये जो सारे चीजों का जो ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है, वो भगवान के द्वारा प्रतित शक्तियां हैं। जैसे इस जगत में हम देखते हैं कि यहां पर कई लोग कहते हैं फलाना जो है स्टील कंपनी के मालिक है, इस्पात कंपनी के मालिक हैं, लेकिन इस्पात जो है वो अपने घर से थोड़ी ले आ रहे हैं, इस्पात तो इसी प्रकृति से उन्हें प्राप्त हो रहा है। या कोई कहे कि वो लोहे की कंपनी के मालिक हैं, लेकिन लोहा कोई घर से थोड़ी ले आ रहे हैं, यहीं पे प्रकृति उन्हें प्रदान कर रही है। तो ब्रह्मा जी को ये सारी विषय वस्तु जो है भगवान ही प्राप्त करते हैं, भगवान ही प्रदान करते हैं। और भगवान प्रदान करने के बाद अब वो सारी चीजें चलायमान नहीं होती, सिर्फ भौतिक विषय वस्तु जो है उसकी संरचना कर देने से वो चलायमान नहीं होगी। तो चलायमान करने के लिए क्या होता है, तो भागवत हमें बताता है कि भगवान पुनः अपना एक विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय गर्भोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और शिरोदक्षाय विष्णु जो है वो कण कण में व्याप्त होते हैं। और जिस तरह से ये देखिए इतना सुंदर पंखा ये चल रहा है, ये सुंदर पंखा क्यों चल रहा है, ये चलायमान क्यों है? ये चलायमान इसलिए है कि इसमें विद्युत तरंगे प्रभावित हो रही हैं। अगर ये विद्युत तरंगे ना हो तो ये पंखा चल नहीं सकता।
उसी तरह से प्रकृति का निर्माण, जीवों का निर्माण या योनियों का निर्माण करने के बाद उसको चलाने की जो शक्ति है वो भगवान स्वयं देते हैं। तो जैसे भगवद गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रहमेर्विदो वेदांत कृत विदेव चाहम। तो भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और जीवात्मा और परमात्मा तो ये दोनों ही हृदय में निवास करते हैं। और शास्त्र में बताता है कि एक जो है भोग करने में लगा हुआ है और दूसरा जो है उसको देख रहा है कि कब वो मुड़ करके देखेगा। और यही भोग करने की इच्छा जो है व्यक्ति के अलग अलग शरीर धारण करने का कारण है, जिसमें यहां पर इस श्लोक में भी बताया जा रहा है। तो यहां पर शरीर को क्या, यहां पर शरीर को पूरा कर करके बताया गया पूरा। तो श्रील प्रभुपाद जी पूरा को करते हैं भौतिक शरीर। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में जब हम जाएंगे तो राजा पुरंजन का व्याख्यान है, आख्यान है। तो उस पुरंजन के आख्यान में यह बताया गया है कि ये शरीर जो है वो 9 द्वारों का पुर है, नगर है। और इस तरह से ये 9 द्वारों के शरीर में व्यक्ति जो है 3, तो उस आख्यान में एक रूपक दिया गया है कि जिस तरह से एक रथ हो और उस पे 3 पताका हो। तो शरीर रूपी रथ में 3 पताका है, समझ लीजिए। तो 3 पताका कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 3 पताका जो है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत व्यक्ति जो है विभिन्न विभिन्न कार्य करता है, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण वो अलग अलग शरीर निर्माण करता है। तो एक बार शरीर का निर्माण हो गया, शरीर जो है वो परमात्मा उसमें आ गया, उसके बाद अब उसके कार्य होंगे। तो ये शरीर क्यों प्राप्त होता है जीव को, जीव क्यों शरीर प्राप्त करता है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास वो सदैव निवास करता है शाश्वत रूप से। भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं माम वैसे जीव लोके जीव भूते सनातना मना इंद्रियाणी शस्त्राणी प्रकृतिस्थानी कर्षति। तो जीव और जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत संगी, शाश्वत रूप से रहते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है उसको भगवान ने क्या दी है? स्वतंत्रता दी रखी है। तो आध्यात्मिक जगत में जीव जो है वो कृष्ण की सेवा करता है और आनंद पूर्वक जीवन जीता है। लेकिन किसी कारणवश कुछ एक जीवों के अंदर ये इच्छा होती है कि भगवान की हम निरंतर सेवा में क्यों संलग्न रहे, हम स्वतंत्र रूप से हम भोग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से एंजॉय कर सकते हैं, तो भगवान की सेवा क्यों करनी? तो भगवान, जैसा कि सृष्टि के बारे में बताया गया है, तो भगवान उन जीवों की इच्छा को पूरी करने के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। और फिर अब इच्छाएं जो है अनंत हैं, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए 3 गुण, तो भौतिक जगत में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 3 गुण नहीं है। इसलिए यहां पर श्लोक में भगवान को परह कह के संबोधित किया, आत्मना परह, परो। तो जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं नारायणो परो अव्यक्त। तो भगवान जो है वो परे हैं, जैसे अपरा और परा, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। तो जीवात्मा भी वो भी परा है और परमात्मा भी परा है, यानी जीवात्मा और परमात्मा इस भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत के। लेकिन जीवात्मा जो है वो इस शरीर में बद्ध होने के कारण वो अपने आप को इस भौतिक चीजों से जोड़ करके इस जगत में दुख प्राप्त करता रहता है। और जब कोई व्यक्ति इस परा से अपरा की यात्रा करे तब जाकर के वो इन 3 गुणों से छूट करके भगवान के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आनंद प्राप्त करने की इच्छा जो है ये जीवों में स्वाभाविक रूप से है, लेकिन चूंकि इस भौतिक शरीर में जीव बद्ध है, इस कारण से वो आनंद की पूर्ण रूप से अनुभूति नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जगत ही इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे शाश्वत आनंद नहीं है। तो भगवद गीता से हमें पता चलता है कि ये जगत जो है वो दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी जगत को इस तरह से निर्माण किया गया है कि यहां पर सिर्फ दुख ही प्राप्त हो। जैसे विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, मदिरालय में मदिरा प्राप्त होती है, उसी तरह से भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है जिसमें व्यक्ति को दुख ही प्राप्त हो। और दुख प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। तो इस जगत में सुख जो है वो सिर्फ 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है, लेकिन दुख प्राप्त करने के अलग अलग अनंत तरीके हैं। तो जीव क्या करता है, चूंकि वो परा है लेकिन अपरा शक्ति के अंतर्गत वो बद्ध होने के कारण वो पराशक्ति की ओर उन्मुख नहीं हो पाता, पराशक्ति की ओर देख नहीं पाता। और जब तक वो पराशक्ति के पास देखेगा नहीं, या पराशक्ति के पास जाने की चेष्टा नहीं करेगा, तब तक इस जगत में वो दुख भोगता रहेगा। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं
कि यद्यपि प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो वो इन प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर सकता है। तो जब व्यक्ति सत्वगुण में रहता है तो सत्वगुण में आनंद के स्तर पर रहता है। तो सत्वगुण भी बंधनकारी है, क्योंकि आनंद में जब रहता है व्यक्ति, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो आनंद में रहने के कारण फिर उसे परमानंद की चेष्टा नहीं रहती। रजोगुण में रहता है व्यक्ति तो वो भागता रहता है। क्रिया जो यहां पर सृजन की बात की गई है, तो श्लोक में बताया गया कि सृजन जो है रजोगुण में होता है, और तमोगुण में व्यक्ति प्रमत्त रहता है। इस तरह से तीनों गुण जो है वो बंधनकारी है, और तीनों गुणों के अंतर्गत जीव जो इच्छा करता है, प्रकृति उसको वो शरीर प्रदान करती है। तो जो भी इच्छा या जो भी स्वभाव रहेगा, प्रकृति उसको ऐसा शरीर प्रदान करेगी। तो ये शरीर का जो चक्र है, जो 84 लाख योनियों का चक्र है, जब तक हम जीव इस चक्र को नहीं काटेगा तब तक वो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न उठता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रश्न उठता है कि जीव के अंदर ये जिज्ञासा आएगी कब, या जीव के अंदर जो है जीव के अंदर ये इच्छा आएगी कैसे कि उससे परे जा सके। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक, या तो जीव जो है भौतिक जगत से खिन्न हो जाए। भौतिक जगत से श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आदमी, मनुष्य जीवन की शुरुआत तब होती है, या भक्ति की शुरुआत तब हो सकती है जब व्यक्ति अपने जीवनचर्या से खिन्न हो जाए। अगर हम अपनी जीवनचर्या को देखें तो हम लोग बार बार चीजों को दोहराते जा रहे हैं, एक ही चीज बार बार घटित हो रही है। तो जब तक हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे कि किस तरह से चीजें बार बार घटित हो रही, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, तब तक व्यक्ति जो है वो, उसका ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, तब तक वो पशुतुल्य जीवन में ही रहेगा। तो जब तक इस भौतिक जीवन के प्रति खिन्नता और जिज्ञासा ना आए कि मैं यहां पे क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक व्यक्ति इसी भौतिक जगत में बद्ध रहेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर उसको साधु का संग प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, या भक्तों से कुछ श्रवण कर ले, तो हो सकता है उसके मन में जिज्ञासा आ जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने पाश्चात्य जगत के शिष्यों के साथ बैठे थे, और उन्होंने कहा, उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद जी, आप कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की सुकृति के कारण व्यक्ति भक्ति में आता है, तो हम लोग ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छी भक्ति की होगी, इसलिए हम लोग इस जन्म में भक्ति कर पा रहे हैं, हमारी भी सुकृति रही होगी। तो प्रभुपाद जी कहते, बेवकूफो, तुम्हारी कोई सुकृति नहीं थी, मैंने तुम्हारी सुकृति जो है बनाई है। तो गुरु भी जो है सुकृति बना सकता है। जैसे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो किसी तरीके से अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आ जाएं, उनका क्षण भर भी अगर हम संग प्राप्त हो, उनसे हम कुछ भी श्रवण कर ले थोड़ा बहुत, तो भी हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और इस तरह से जब हम गुरु के संग में, या प्रामाणिक गुरु का संग में प्राप्त होगा, और अगर हम उनके निर्देशों को, अगर उनके बताए गए निर्देशों को अगर हम अपने जीवन में ढाल ले, तो उनके निर्देश ही पर्याप्त है हमें इस प्रकृति की तीनों गुणों से पार करने के लिए। तो भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है, जैसे इसके पहले श्लोकों में बताया गया। तो त्रिगुणातीत है, तो भगवान तीनों गुणों के परे हैं। तो अगर कोई विषय वस्तु, कोई चीज जो तीनों गुणों के परे है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा। जैसे अग्नि है, अग्नि में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि है, अग्नि में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण होने चाहिए जो अग्नि के गुण है। अगर अग्नि के गुण हमारे अंदर नहीं है तो अग्नि जला करके भस्म कर देगी। तो उसी तरह से अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भी हमें तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा। तो तीनों गुणों से परे जाने का अर्थ है कि हमें सदैव भगवान में रमना पड़ेगा। तो जो हम भौतिक कार्य करते हैं वो तीनों गुणों के अंतर्गत रहता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्य जो है वो तीनों गुणों से परे होता है। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि तीनों गुणों से परे जाने के लिए हमें कोई एक पैर पे खड़ा नहीं होना है, या कोई ऐसा उल्टा नहीं लटकना है। हमें जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्रिया को कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना है। तो हम सारे कार्य जब कृष्ण को समर्पित करेंगे, तो कार्य जब कृष्ण उसको स्पर्श कर देते हैं या उसके संसर्ग में आ जाते हैं, वो तीनों गुणों से परे हो जाता, त्रिगुणातीत हो जाता है अपने आप ही। तो उसी तरह से हम अपनी जीवनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो भोजन अगर हम सिर्फ अपने खुद खाने के लिए कर रहे हैं तो त्रिगुणों से युक्त रहेगा। लेकिन जैसे ही वो भोजन भगवान को अर्पित हो जाएगा, वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो इस तरह से भगवद गीता में भगवान हमें निर्देश देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो जो भी कुछ कार्य करें, जो भी कुछ खा पी रहे हैं, जो भी कार्य है, सभी कार्यों को हमें कृष्ण को समर्पित करना है। और कृष्ण को जब अर्पित कर देंगे, कृष्ण को समर्पित कर देंगे, वो सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे। और जब ये सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हम जो कर्मफलों से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्मफल क्या है, कर्मफल क्यों लगते हैं?
जब हम भोग करने की इच्छा, जब जीव जो है भोग करने की इच्छा करता है तो कर्म फलों से युक्त हो जाता है, लेकिन जीव जब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करता है या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है तो मुक्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को इस कली काल में जो है इस त्रिगुणों से मुक्त होने का उससे भी सरल तरीका बताया है, वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम जो भी, जैसे हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य को करते हुए हरि नाम का जप करिए। कहते हैं कि अगर कार्यालय में आप टंकण कर रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं तो भी आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी आचार्यों के बताए गए पथ का अनुगमन करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिर्फ कहा है हमें 4 नियम का पालन करना है और नियमित रूप से 16 माला का हरे कृष्ण नाम का जप करना है। अगर हम बस इतना ही निरंतर अपने जीवन काल में, जीवन के अंत तक अगर हम भगवान का नाम, भगवान के नामों का जप करते रहे तो हम भी त्रिगुणों से परे होकर के हम जो है भगवान के नित्य शाश्वत आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो मैं वरिष्ठ भक्त कुछ इस पे टीका करना चाहेंगे? ललित माधव प्रभु। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं ना प्रभु? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।